जस्ट अ सेकंड, इसको लेआउट कैसे चेंज करते हैं? Okay, the screen is visible, board is visible, right? Acha. So the last class what we did was drawing a particular plane when with the help of two straight lines. And I gave a problem last class. So there was a bed exposed at 3 locations. So that problem was clear, right? Recordings I haven't sent. Or have I sent? नहीं, रिकॉर्डिंग शायद नहीं आया था। I fell sick at that time, so that's why I forgot. Fine. तो आज हम जो करने वाले हैं that is StereoNet. You should add also the playlist of structural geology, right? Yeah. I think I haven't uploaded. Okay. Where? Hello? Yes, ma'am. मैम Yes, नहीं, ma'am. दीदी बोलो. हाँ जी दीदी. ठीक है. So this is your first class. तो इस सेमेस्टर में स्ट्रक्चरल है तुम्हारा? जी. और have you learned anything in the class? मतलब कॉलेज में कुछ हुआ है कवर? जी हमें थोड़े बहुत अनसर्टेनिटी के क्लासेस किए थे, लेकिन हम एब्सेंट थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे. सो फिर से बताओ, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. फिर से एक बार बताओ. जी अनसर्टेनिटी का क्लासेस हुआ था, लेकिन तभी हमारा एक पेपर था तो इसीलिए हम अटेंड नहीं कर पाए. तो ओके. सो जी. आज हम स्टीरियोनेट स्टार्ट करेंगे. So you must have seen something like this. है ना? You have seen something like this? So this is basically a StereoNet. There are two kinds of StereoNet. That detail I'll go to later. But अभी के लिए we have to learn how the StereoNet forms और इसका use क्या है, इसका significance क्या है structural geology में. So this is a net. It's kind of a net, no? There are checks in this whole thing, so it's kind of a net, right? Yes, ma'am. Now, Hadi. दीदी बोलो. हाँ जी. This we call StereoNet. तो इसका यूज ये है कि on the StereoNet we plot lines and planes. क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं we have to collect data. किसका डेटा? अगर हम एक फोल्ड को देख सकते हैं या एक कोई प्लेन को देख सकते हैं तो everything comes down to lines and planes. Everything in the field can be broken down into lines and planes. मतलब अगर ऐसे एक फोल्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये फोल्ड में there are few lines and few planes. So any structure can be broken down into lines and planes. समझा? So इस फोल्ड में see this is a line. मतलब अगर ऐसे फोल्ड हम क्रिएट करेगा
क्रिएट करेंगे तो इधर एक लाइन है ना, इमेजिनरी लाइन. हम्म So Yes. this is called the fold axis. So basically what I'm trying to say is, हर field structure में, हर geological structure में there are lines and planes. इधर एक plane है, इधर एक plane है, इधर एक line है ना? So the point I'm trying to make is, जो भी structure you are able to see in the field, that can be broken down into lines and planes. So that's why हम क्या करते हैं, वो लाइन और प्लेन का जो डेटा, उसका ओरिएंटेशन क्या है, दैट वी मेजर विद द हेल्प ऑफ कॉम्पस, ब्रंटन कॉम्पस या क्लाइनोमीटर इन द फील्ड, राइट? हैज एनी ऑफ यू गॉन टू द फील्ड? Yes, ma'am. What is Yes. the first thing you do in the field? एक बार गए, हाँ मैं भी गया हूँ. What is the first thing that you do in the field? We measure deep and strike. Exactly. So what is strike, Stuti? Um, I don't want any it is definition. मुझे the बस ऐसे बताओ, so that if I don't understand what is strike, I can understand from what you are saying. ऐसे बस explain करो मुझे. it's a line. कौन सा line? There are infinite lines in the universe. So कौन सा line? Which line exactly? It's a line perpendicular to the inclined plane. Perpendicular to the inclined plane. No idea, ma'am. Okay, so do one thing. हमारा जो YouTube चैनल है ना, उधर लास्ट क्लासेस का वीडियोस अपलोडेड है, वो थोड़ा देख लेना. Okay, ma'am. I will send you the playlist. उधर से थोड़ा देख लेना. स्ट्राइक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. स्ट्राइक मतलब, अगर कोई प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन है, तो वो प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ कितना, हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ जो लाइन में इंटरसेक्ट करता है, दैट इज द स्ट्राइक लाइन ऑफ दैट इंक्लाइन प्लेन. कुछ समझ में नहीं आया? Ma'am, can you repeat it again? So this is the inclined plane, right? Yes. And this is the horizontal plane. Yes. Okay? Yes. So these two planes intersect. Yes. तो अगर दोनों प्लेन्स इंटरसेक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा? A line. A line. लाइन, राइट? तो वो लाइन Yes. का ओरिएंटेशन कैसा होगा? अगर ये प्लेन Um, हॉरिजॉन्टल है और ये प्लेन इंक्लाइंड है, तो ये वाला लाइन का ओरिएंटेशन कैसा होगा? Oriental. रुको, स्तुति बताओ. J horizontal. आर यू श्योर? Ma'am, line can be in any direction, I guess. Horizontally, मतलब vertically. ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये इंक्लाइन प्लेन है, so these two Yes. planes are intersecting at a particular line. तो वो वाला लाइन कैसा उसका ओरिएंटेशन होगा? No, I'm not getting it. This is a horizontal plane. Yes. ये इंक्लाइन प्लेन है. Yes. तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है किधर? ये वाला लाइन में. जी. तो ये वाला लाइन फिर इसका ओरिएंटेशन कैसा है? Horizontally. Exactly, that's what I'm asking.
तो ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको ही हम स्ट्राइक कहेंगे। अच्छा, बाकी तुम एक बार वो वीडियोस देख लेना। आई होप यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। अगर नहीं समझ में आया तो बताना। सो जी। व्हाट वर वी डूइंग? स्टीरियो नेट। तो फील्ड में जाके व्हाट वी डू इन द फर्स्ट प्लेस इज वी मेजर डीप एंड स्ट्राइक ऑफ द प्लेन। मतलब कोई भी प्लेन हो, अगर कोई स्ट्रक्चर है, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू लाइंस एंड प्लेन्स। सो वी मेजर strike and dip of the line and orientation of the plane, orientation of the line. Strike and dip of what did I say? Strike and dip of the planes and trend of the line. Plane का strike, dip और line का trend. Right? So after we measure this, what do we do? What we do is we plot the data on the StereoNet. StereoNet is a very easy विजुअलाइजेशन के लिए बहुत अच्छा एक टूल है। लाइंस और प्लेन्स को हम जब प्लॉट करते हैं, सी व्हेन देयर आर वन लाइन वन प्लेन, तो इट्स वेरी इजी। यू कैन जस्ट विजुअलाइज इट इन, मतलब ऐसा ही तुम विजुअलाइज कर सकते हो। अगर तुमको बोला जाए कि देयर इज अ प्लेन विच इज 030 50 degree east, so how will the plane look like? Someone tell me. पहले तो दीदी डीप डायरेक्शन को नोट कर देंगे, उसके बाद उसका डीप एंगल कर देंगे, हो जाएगा वो। मैं बोल रही हूँ like if I start from here, इधर 0 है। हाँ I told you ना, इधर हाँ I told you about हाँ azimuth, तो 0 0 0, इधर है 090, इधर है 90 110, इधर है 270। तो you must be able to tell me कि 030 किधर होगा? ये 000 यहाँ पे 10 20 30 यहाँ पे पे होगा 10 20 30 यहाँ पे हाँ। but I haven't measured it like that, so it would be कहीं पे, इधर कहीं पे होगा। Let's say इधर ही है और 50 degree east, तो which side will it be dipping? इसका डिप डायरेक्शन क्या है? वो डीप हो जाएगा ईस्ट और साउथ में, हाँ क्या? मतलब ईस्ट वार्ड जाएगा, डीप डायरेक्शन है। तो यहाँ से 330 बाकी वो we will learn now, Pawan. How to ओके। plot the plane we will learn. We haven't learned yet, so it's fine if you don't know. I was just saying कि अगर 030 50 degree east is a plane, so we can easily visualize कि वो plane ऐसे ही कहीं पे होगा। 030 इधर है, so इधर होगा, ऐसे इसका orientation ऐसे कुछ होगा। We can visualize that. But हम एक्चुअली जब रिसर्च पर्पस में या कोई इंडस्ट्री में भी जब काम चलता है, when we go to the field and when we acquire data, it's not like we are having 2 or 3 planes. It's not like that. We have 200 300 planes, 200 300 lines. इतना सारा planes है, इतना सारा lines है, तो how will we manage? बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा साथ में सबको विजुअलाइज करना, है ना? एंड फील्ड में जाके जब तुम फील्ड में एनालिसिस, नॉट एनालिसिस, फील्ड वर्क कर रहे हो, अगर मतलब ऑल ऑफ यू हैव गॉन टू द फील्ड एटलीस्ट वंस, सो यू मस्ट नो दैट फील्ड में देयर आर इंटर रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑल द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स दैट वी आर सीइंग। मतलब अगर ये फोल्ड है तो ये है फोल्ड एक्सिस, और ये एक प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, तो दिस 3 थिंग्स आर इंटर रिलेटेड, हाँ या ना?
हाँ दी। क्योंकि they are part of one single structure, so they are interrelated, right? हेलो। जी। सो ये जो इंटर रिलेशनशिप्स है, टू अंडरस्टैंड इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, what we have to do is we have to visualize our whole data together, है ना? यस दी। अगर एक प्लेन दो प्लेन है तो we can easily visualize it in our head, in our mind. बट अगर 200-300 प्लेन्स है, 200-300 लाइन्स है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू विजुअलाइज देम. That's where StereoNet comes into place. What we do is we plot the data, like 200-300 plane का data, 200-300 line का data, उनका orientation, we plot that on the StereoNet. कैसे plot करेंगे that we will see बाद में, but अभी why we use the StereoNet? Because we plot all the data on the StereoNet, and in the StereoNet you can see all the data together. एक साथ तुम देख सकते हो पूरा जो 200-300 लाइन का तुम्हारा डेटा मिला फील्ड से, that you can see together. When you are able to see them together, you are able to understand the interrelationships between them. अगर नहीं देख पाओगे तो कैसे तुमको समझ में आएगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप्स क्या है ना? साथ में जी। डेटा को देखना है, तब भी तुमको समझ में आएगा कि इनके बीच में रिलेशनशिप्स अगर है या नहीं है. दैट्स व्हाई वी यूज स्टीरियोनेट. अब हम सीखेंगे स्टीरियोनेट कैसे फंक्शन करते हैं, और बेटर उसके पहले वी हैव टू नो कि how do these great circles and small circles come. So basically ये जो लाइन देख रहे हो, ये जो लाइन्स, ये स्टीरियोनेट के साथ, do you find any similarity with anything that we know very well related to the earth? Looks like this. Can you tell me? Latitude, longitude. Absolutely, latitude, longitude. अच्छा, पवन और भार्गव कहाँ गया? दीदी नेटवर्क प्रॉब्लम है पवन का, वो ना बहुत परेशान था नेट को लेकर। हाँ वो थोड़ा सा उनको पता नहीं था ना कि आज क्लास होगा, तो इसलिए मैं एक बार उनसे पूछ लेता हूँ। I'll wait. You just go and ask him. Okay. दी आ रहा है, मतलब उसका नेट खत्म हो गया, रिचार्ज करवा रहा है। दीदी कंटिन्यू कर सकते हो, वो आ जाएगा तब तक, वो हो जाएगा, जहां से छूटेगा उसका कर देंगे भाई, यानी तो 2 मिनट देख लेते हैं। हम्म। But I'm saying समझ में आ रहा है स्तुति? जी मैम।
जी दी नो मैम। कॉलेज में आदत हो गई तो इसलिए हाँ बट इधर इट्स जस्ट सीनियर्स एंड जूनियर्स, जी इतना मैम सर बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है इधर। हाँ जी। Am I audible? Hello? Right. So, I was just a second. So what I was saying is पवन एक बार लास्ट सुन लो. So स्टीरियोनेट का यूज क्या है? Why we use स्टीरियोनेट? Why did the स्टीरियोनेट come into play? क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं we हाँ see the geological structures that can be broken down into lines and planes only, right? Now हाँ the thing is, अगर तुम्हारे पास कोई एक दो प्लेन्स और लाइंस है, then you can visualize it in your mind easily, है ना? बट रिसर्च पर्पस में हम जब फील करते हैं तब हमको जो डेटा मिलती है दैट कंसिस्ट्स ऑफ बहुत सारे लाइंस एंड प्लेन्स, लाइक 200 300 400 डेटा, मतलब 200 300 400 है लाइंस का नंबर, या 200 300 है प्लेन्स का नंबर. तो इतना सारा जो लाइंस एंड प्लेन्स होता है दैट वी हैव टू विजुअलाइज टुगेदर. हाँ क्यों विजुअलाइज करना है? क्योंकि हम अगर इसको टुगेदर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप्स है दैट वी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. हाँ इसलिए वी हैव टू विजुअलाइज ऑल द प्लेन्स एंड लाइंस टुगेदर, हाउ दे आर ओरिएंटेड, और रिलेशनशिप पर्पस है ना? हम्म दैट्स व्हाई वी यूज स्टीरियोनेट. क्योंकि स्टीरियोनेट में हम क्या कर सकते हैं? स्टीरियोनेट में हम वो पूरा जो 300 400 जो लाइंस एंड प्लेन्स we have got in the field, we can plot them together in the stereonet. This ओके we cannot do anywhere else. Only in stereonet we can do this. तो हम साथ में अगर प्लॉट करेंगे तो we will be able to see a clear picture कि लाइंस और प्लेन्स जो हमारा फील्ड में मिला है how they are oriented. We can get a clear picture of that. तो वो क्लियर पिक्चर जब हमको मिलेगा तब भी हमको समझ में आएगा कि उनका बीच में उनके बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप्स है. इन दैट वे यू कैन फर्दर प्रोसीड इनटू योर रिसर्च. और जो भी तुम्हारा गोल है दैट यू कैन प्रोसीड इनटू. दैट्स व्हाई स्टीरियोनेट इज इम्पोर्टेंट. सो हाउ डज दिस लाइंस कम? मतलब this looks very similar to the latitudes and longitudes. हाँ These are kind of the latitudes and these are kind of longitudes. It's kind of similar. So how do this come to play? So this is hemisphere, the lower hemisphere. Okay.
the lower hemisphere lowest point is called nadir, and the uppermost point is called zenith. Now basically these are planes. ये डायग्राम समझ में आ रहा है? Is this diagram like समझ में आ रहा है? ये एक हेमिस्फीयर है और इधर there are planes. Like this is a plane. Okay. Can you Yes, understand? ma'am. Yes, the. Again, this is a plane. This is a plane. So these are ऐसे ऐसे करके planes. Hemisphere है. This is one plane. This is one plane. Now there is another plane. Now there is another plane. ऐसे करके there are so many planes. इतना तक clear है? Yes, the. Ravi? हाँ दी So how the planes are ये oriented? दी Is that clear? ये क्या लिखे दी ये क्या लिखे Nadir. नादिर Yes. क्या होता है नादिर नादिर मतलब लोअर हेमिस्फीयर का एकदम लोएस्ट पॉइंट, लोअर मोस्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड नादिर. ओके ओके और ये जो बनाया है आपने वो क्या है प्लेन These are planes. ठीक है तो ये प्लेन क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे मैं वही बताने वाली हूँ. ठीक ठीक Like we are not talking about any particular plane. स्पेस में मतलब स्पेस मतलब यूनिवर्स या जो भी है, देयर कैन बी इन्यूमरेबल ओरिएंटेशंस ऑफ प्लेन्स. तो ये जो इन्यूमरेबल ओरिएंटेशन ऑफ प्लेन्स, वी आर गोइंग टू सम देम अप टुगेदर एंड प्लॉट देम इन द स्टीरियो नेट. Okay. So this is one orientation, this is another orientation, this is another orientation, this is another orientation. मतलब ये है एक ओरिएंटेशन, ये ऐसे हेमिस्फीयर है, ऐसे हेमिस्फीयर है, ये है एक ओरिएंटेशन, ये है एक ओरिएंटेशन, ये है एक ओरिएंटेशन, फिर ये है एक ओरिएंटेशन. समझ में आया? Yes, the. I will show you videos as well. तो ये जो सारे ओरिएंटेशंस है, वी आर बेसिकली समिंग अप ऑल द ओरिएंटेशंस दैट आर पॉसिबल. तो हम क्या करेंगे, हम ये जेनिथ से इसको ज्वाइन करेंगे. Like this, we will join. तो क्या हुआ, ये जो प्लेन है, एकदम ऊपर वाला जो प्लेन है, उसके साथ आई एम जॉइनिंग द जेनिथ. सबको दी का स्क्रीन दिख रहा है क्या मुझे नहीं दिख रहा था इसलिए पूछ रहा हूँ हाँ अब दिख रहा है दी का हाँ नहीं दिख रहा था तभी से.
अच्छा रुको, अ, हाँ बोलो। दी जो जेनिथ है वो हेमिस्फीयर का अपर पॉइंट है। अपर हेमिस्फीयर का अपर पॉइंट है। ओके। अभी स्क्रीन हट गया, फिर आपने बंद ऑफ कर दिया क्या? नहीं तो हाँ अब दिख रहा है, बीच बीच में बंद हो जा रहा है, क्यों? हाँ ठीक है दिख रहा है अब। तो मैंने क्या किया, ये जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन ऊपर वाला, इसके साथ मैंने जेनिथ को कनेक्ट किया। हम्म तो क्या जी। होगा, तो ये जो इक्वेटोरियल प्लेन है, इसका इक्वेटोरियल प्लेन समझ में आ रहा है? हम्म तो इक्वेटोरियल प्लेन से वो लाइंस पास करेगा। हाँ जी। तो पास करने के टाइम जो जो पॉइंट में वो पिन पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट वी विल कनेक्ट। कैसे? सी, इधर पास कर रहा था, सो इधर पास कर रहा था, ऐसे करके कुछ होगा। हम्म जी। मतलब वो थोड़ा अंदर आ जाएगा, ये जो लाइन बना। रुको, देखो अच्छे से देखो। जी। समझ में आया ये? जी। फिर से बताऊं? नो मैम। हाँ दी एक बार। दी। देखो, दिस इज योर लोअर हेमिस्फीयर, दिस इज द सेंटर। मुझे हाँ या ना हम्म बोलो। सो दिस इज द हाँ सेंटर। हाँ दी। जी। नाउ मान लो कि this is a plane हम्म हम्म, and this is my zenith। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं जेनिथ के साथ ये हर पॉइंट को, ये जो प्लेन का हर जो पॉइंट है, मैं उसको कनेक्ट कर रही हूँ। अच्छा ऐसे, लाइक दिस। गॉट इट? सो दिस इज हाँ दी माई ये जेनिथ। जेनिथ। तो ये करने से फायदा क्या हुआ मेरा? हम्म दिस वॉज द लाइन आई ऑलरेडी हैड, नॉर्थ साउथ लाइन। और ये था मेरा प्लेन। तो अगर ये प्लेन का जो पेरिफेरी है, मतलब ये जो लाइंस है, सॉरी ये जो पॉइंट्स है ऑन दिस लाइन, ये प्लेन का पेरिफेरी है। तो हम्म यस दी। तो इसके ऊपर जो जो पॉइंट्स है, आई हैव कनेक्टेड ऑल द पॉइंट्स विद जेनिथ, राइट? हम्म हम्म यस अब दी। सोचो, ऑल दिस लाइंस, ये वाला जो लाइंस है,
these lines will intersect the equatorial plane somewhere. हाँ Yes. कहाँ कर रहा है, इधर देखो, इधर करेगा, फिर इधर करेगा, हम्म फिर ऐसे आएगा। हम्म ये क्या किया दी आपने, ये क्या किया अभी, और ये कैसे हुआ, या उससे पहले तक तो समझ में आया, ये क्या किया अभी आपने? ये लाइन हम्म मतलब ये इक्वेटोरियल प्लेन है मेरा, हम्म तो जेनिथ से ऐसे ऐसे करके जा रहा है हम्म लाइंस, ये वाला जो हम्म लाइंस है, ये वाला लाइंस। हम्म तो तब क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन को कहीं पे कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे कट करके निकल जाएगा। हाँ तो जहां जहां पे कट करेगा, if we join those points we will get something like this. ओ ठीक है ठीक है। देखो, this plane is like this, ऐसे inclined है ना, हम्म ऐसे नहीं है, ऐसे भी नहीं है, it's inclined, right? ओके तो अब all these lines, these red lines, they didn't go till here, they remained till here only, है ना? हाँ So if we join all the points we will get something like this. हाँ समझ में आया पवन कैसे हो रहा है? हाँ जी समझ रहा हूँ। तो ये जो हम्म लाइन हमको मिला ये इक्वेटर वाले रीजन पर है। इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर है, हम्म दिस इज कॉल्ड अ ग्रेट सर्कल। तो ऐसे करके अगर दूसरा कोई ओरिएंटेशन का प्लेन हम लेते हैं, हम्म सेम वे में हमको और भी ग्रेट सर्कल्स मिलेगा। जी दी। तो this is one orientation of plane, this is another orientation of the plane, this is another orientation of the plane। हर ओरिएंटेशन में हमको अलग अलग करके ग्रेट सर्कल्स मिलने वाला है, हम्म जी। एंड ये जो इतने सारे ओरिएंटेशंस है, they are going to cover all the possible orientations that are possible in life, possible in the universe। हाँ जी। कवर तो कर पूरा। कवर हो रहा है कि नहीं? हाँ ऑल पॉसिबल जो ओरिएंटेशंस है, मतलब ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, फिर हम्म उस साइड में ऐसे 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 ऐसे। सो हम्म ऑल द पॉसिबल ओरिएंटेशन स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू ऐसे घूम के पूरा ऐसा। तो like all the this। possible orientations are possible here, are being taken into consideration here, हम्म जी। क्योंकि इस साइड में भी तो हमारा पॉसिबल है प्लेन्स, हाँ है ना? हम्म जी। तो दिस इज हाउ वी गेट द ग्रेट सर्कल। तो अगर ये ग्रेट सर्कल जो हुआ, ये हुआ कौन सा प्लेन के ऊपर? इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर। राइट। तो इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर जो हुआ है, वी विल टेक द इक्वेटोरियल प्लेन एंड पुट इट हियर, ऐसे करके वी विल पुट, क्या दिखेगा? ऐसे नॉर्थ साउथ लाइन है, एंड दिस इज द ग्रेट सर्कल दैट आई हैव जस्ट ड्रॉन हियर। हाँ जी। ऐसे करके देयर कैन बी ग्रेट सर्कल लाइक दिस, देयर कैन बी ग्रेट सर्कल लाइक दिस,
like this. So there can be so many great circles, है ना? जी These are these great circles. Okay. इधर जो great circles तुमको दिख रहे हैं ना, these are nothing but this. Clear है? यस जी लैटिट्यूडनल वाला पॉइंट है वो कैसे बनेगा? हाँ, लैटिट्यूडनल वाला जो लाइन है वो कैसे बनेगा इस पर? वो अभी बोलने वाली हूँ. Okay. अभी पहले बताओ ग्रेट सर्कल का फॉर्मेशन क्लियर है या नहीं? हाँ, clear है। हाँ बोलो. हाँ हाँ क्लियर है। नहीं मैं ये सोच रहा था क्लास में इस तरह से बताया क्यों नहीं गया, क्लास में इस तरह से बताया क्यों नहीं गया वो मैं ये सोच रहा था मेरे क्लास में, मतलब इस कॉलेज में सोच रहा था। ओके ओके ओके, पता नहीं वो मैं मुझे कैसे पता. मुझे हाँ हाँ क्यों वो पूछ रहे हो, मुझे कैसे पता? ओके. भी हाँ भी मतलब मैं क्लास इसलिए लेट हो गया था क्योंकि मेस में खाने का टाइम हो गया था। अगर टाइम पे नहीं जाता तो नहीं मिलता। ओके ओके ठीक है. तुम एक काम करना, तुम रिकॉर्डिंग सुन लेना क्योंकि बहुत हाँ लंबा हाँ पार्ट है ना. इफ आई स्टार्ट रिपीटिंग बहुत टाइम चला जाएगा. हाँ ओके ओके So what I was saying is what things I have covered. Those are स्टीरियोनेट क्या है, स्टीरियोनेट का यूज क्या है, मतलब स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में why we need स्टीरियोनेट, ये मैंने कवर किया. और स्टीरियोनेट में ये जो ग्रेट सर्कल्स है, हाउ दे हैव कम इनटू प्लेस, हाउ दे आर फॉर्म्ड, दैट आई हैव कवर्ड. You can see this, right? I can cover this thing now, repeat this thing now. You can see this, right? This is the lower hemisphere. Bhargav? यस जी So this is the lower hemisphere, as you can see, or these are basically orientations of planes, different planes. ओके कुछ समझ में नहीं आ रहा है देख के, ये डायग्राम देख के? आ रहा है थोड़ा बहुत आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो कोई चिंता की बात नहीं है. You can always see the recording. It's fine. ओके ली So this is the lower hemisphere and these are different planes. तो ये है अपर हेमिस्फीयर जो है, इधर ऐसे अपर हेमिस्फीयर है, तो दैट आई हैवंट ड्रॉन हियर. उसका जो अपर मोस्ट पॉइंट है दैट इज जेनिथ. दिस इज जेनिथ. ओके भार्गव? ओके. हाँ. सो इफ वी जॉइन द पेरिफेरी ऑफ एनी प्लेन विथ दिस जेनिथ, व्हाट वी गेट इज ऐसे रेड लाइंस मिलती है हमको, है ना? तो दिस रेड लाइंस कट द इक्वेटोरियल प्लेन समवेयर. जहां पे कट करेगा, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा, if we connect those points, we will get something like this. Like this. ये समझ में आया भार्गव? आ गया दी तो this is the equatorial plane. If we put that here, we are Okay. just taking the equatorial plane, ऐसे करके लिया, कॉपी कर लिया और अभी पेस्ट कर दिया. तो क्या मिलेगा हमको? ऐसे नॉर्थ साउथ लाइन मिलेगा, जैसे कि इधर नॉर्थ साउथ लाइन था. ये नॉर्थ साउथ लाइन मिलेगा और ऐसे एक सर्कल मिलेगा, हाफ सर्कल. सो दिस इज probably the half circle I'm talking about. यस तो ऐसे करके बहुत सारे ओरिएंटेशंस हो सकता है प्लेन्स का. मतलब the plane can be like this, the plane can be like this, the plane can be like this, can be like this. फिर ऐसे करके ऐसे 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 करके बहुत सारे ओरिएंटेशंस, इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ ओरिएंटेशंस हो सकता है. For each orientation we will get one great circle.
Yes. So that is how we get all these great circles. Okay. So स्टीरियोनेट का ग्रेट सर्कल का जो स्टोरी है that is this. मैम हाँ मैप पे जो कंसीडर किया गया है जो स्टेरियोनेट्स का प्रोजेक्शन, तो वो उसका जेनिथ का पॉइंट क्या कंसीडर किया गया है, कहाँ से कंसीडर किया गया है? जेनिथ मतलब अपर हेमिस्फीयर जो है ना, जी ये तो लोअर हेमिस्फीयर है, इसके ऊपर तो और एक हेमिस्फीयर है that we haven't drawn, but है तो जी उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, मतलब समथिंग लाइक दिस, यस उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है दैट इज जेनिथ. ओके, यस आई एम गेटिंग दैट, लेकिन मैं अर्थ के बेसिस पे बोल रही हूँ कि इस पे जेनिथ की कौन से पॉइंट पे कंसीडर किया गया है अर्थ से? स्टीरियोनेट तो अर्थ के लिए नहीं है, मतलब स्टीरियोनेट इज जस्ट लाइक यू आर टेकिंग डेटा एंड प्लॉटिंग डेटा इनटू इट. इसका सिग्निफिकेंस बस इतना ही है. इट्स नॉट दी दैट अगर अर्थ को अगर अर्थ के पिक्चर को सिर्फ कंसिडर करने की बात करें, सिर्फ पिक्चर की बात करें, तो नॉर्थ पोल को जेनिथ और साउथ पोल को नादिर कह सकते हैं क्या? बस पिक्चर के जो नॉर्मल समझने के लिए बोल रहा हूँ. मतलब नहीं समझने के लिए यू कैन कंसिडर दैट, बट स्टीरियोनेट में वो सब कुछ नहीं है. फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस यू कैन कंसिडर नॉर्थ पोल एज जेनिथ, फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस. ओके जी समझ में आया? जी स्टीरियोनेट का यूज कैसे होता है, यू विल ग्रेजुअली गेट टू लर्न दैट, तो डोंट वरी, तब समझ में आएगा अच्छे से. until and unless you use the stereonet on yourself you won't understand. मैं जितना भी बोलती रहती हूँ कि ऐसे यूज करना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है, you won't understand until and unless you use it yourself. तो just wait and watch, you will understand. तो अब बात करेंगे स्मॉल सर्कल के बारे में. बेसिकली ये जो प्लेन्स मिला हमको, ये प्लेन के ऊपर सी what we have are planes and lines, और कुछ हमारे पास नहीं है, बस प्लेन्स है और लाइंस है. अब प्लेन्स को प्लॉट करना वी ऑलरेडी नो, मतलब वी नो कि प्लेन्स आर प्लॉटेड एज ग्रेट सर्कल्स. कैसे प्लॉट करना होता है वी डोंट नो येट, वी विल लर्न दैट. बट मतलब यहाँ तक तो मतलब यू नो कि प्लेन्स आर प्लॉटेड एज ग्रेट सर्कल्स, यू नो राइट, है ना? यस सी तो अब लाइंस को प्लॉट करना कैसे होगा? देन कम्स स्मॉल सर्कल्स. स्मॉल सर्कल्स मतलब ये वाला जो लाइंस है, ये वाला जो सर्कल्स है, these are called small circles. तो small circles are basically our tool to plot the lines. तो लाइन तो ऐसे हवा में फ्लोटिंग नहीं रहेगा, it will be on some plane. यस मतलब सी तुम अगर कोई मान लो तुम फील्ड में गए चुके हो और तुम बस ऐसे लाइंस, कोई लाइन को देख रहे हो, तो इट वोंट बी समथिंग कि ऐसे हवा में ऐसे फ्लोट कर रहा है, ऐसे तो नहीं होता. इट वुड बी समथिंग ऑन अ प्लेन, है ना? जी हैव यू लर्नड अबाउट स्लिकन लाइंस? नो स्लिकन लाइंस आर बेसिकली जब ग्लेशियर मूव करता है ना, तो बहुत स्लोली वो मूव करता है और ग्लेशियर के एकदम बीच में नहीं, एकदम बॉटम में देयर आर बोल्डर्स एंड रॉक फ्रेगमेंट्स.
तो when the glacier moves, it creates marks and lines on the rock surface through which it moves. मतलब ऐसे अगर सरफेस है एंड दिस इज द ग्लेशियर, तो इसके बॉटम में ऐसे बोल्डर्स रॉक फ्रेगमेंट्स है, तो when it moves जी like this, when it moves like this, it will create ऐसे ऐसे करके lines, scratch lines. स्क्रैच होता है ना, अगर हाँ कोई जी ধারালোকে কি বলে ধারালো व्हाट इज मतलब शार्प है, राइट, शार्प, कोई शार्प ऑब्जेक्ट अगर होगा तो इट विल क्रिएट स्क्रैचेस, राइट. हम्म यस तो ग्लेशियर के बीच बॉटम में जो शार्प रॉक फ्रैगमेंट्स होता है, दे आल्सो क्रिएट स्क्रैचेस ऑन द रॉक सरफेस. These हाँ are ऑफ called कोर्स slicken lines. So we can measure these lines. इनका ओरिएंटेशन कैसा है. तो मेरा बोलने की मतलब ये है कि lines are not something floating in the air. They are always on some surface. जैसे कि slicken lines are on some rock surface. Fold axis is on the axial plane. तो ऐसे करके lines are always on some plane. Lines don't float in the air like this. समझ में आया. जी तो ये जो lines है, it must be on some plane. तो while plotting the planes, we didn't have to take the help of any line, did we? हाँ लेंगे, हेल्प लेंगे. नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ while we were plotting planes, मतलब ये जो प्लॉट किया है मैंने प्लेन, ग्रेट सर्कल बना, हम्म ये प्लॉट करने में कोई लाइन का हेल्प लेना पड़ा? जी नहीं, वो इक्वेटोरियल लाइन पे जो इंटरसेक्टिंग हुआ तो उससे हमें पता चला कि हो गया, ग्रेट सर्कल बन रहा है. एग्जैक्टली, काम हो गया. सो वी डिडंट हैव टू टेक द हेल्प ऑफ एनी लाइन. बट जब हम लाइन को प्लॉट करेंगे ना, just because lines are always on some planes, we will have to take the help of a plane. Fair enough. जी तो मान लो कि ये लाइन, ये प्लेन में कहीं पे कोई लाइन है. अच्छा, पहले बताओ कि प्लेन का डायमेंशन कितना है. 3D मतलब पूरा पूरा का. हाँ, ये फिगर में क्या दे. प्लेन का डायमेंशन कितना है. 2D 3D 3D 2D. 2D या 3D? फिगर में 2D है. 2D No, any plane is 2D or 3D. 3D अगर 2D एनिमेशन तो 3D रहता है. हाँ, एक्चुअली में कोई प्लेन 3D टू डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल, या. तो जब हम उसको प्लॉट करेंगे, जब हम उसको प्रोजेक्शन ले रहा है, तब इट बिकम्स अ लाइन. लाइन बन गया ना, सर्कल बन गया ना, हम्म तो डायमेंशन एक कम हो गया. जी सिमिलरली लाइन का डायमेंशन कितना है. 1 1D 1 तो जब लाइन को प्लॉट करेंगे, डायमेंशन कितना होगा. डायमेंशनलेस. मतलब लाइंस आर प्लॉटेड एज प्लेन्स. इज दैट बाबा? लाइंस आर प्लॉटेड एज पॉइंट्स. प्लेन्स आर प्लॉटेड एज लाइंस. लाइंस आर प्लॉटेड एज पॉइंट्स. तो मान लो कि ये जो 1 2 3 4 प्लेन्स है इधर. 1 2 3 4, राइट. जी तो अगर इसके ऊपर ऐसे एक प्लेन है, जैसे कि ऐसे एक लाइन है, जैसे कि लाइन, all the lines have the same pitch.
पिच पिच क्या था? तो साउंड में है ना। नो, पिच क्या था? जैसे कि 3/4 स्ट्राइक होता है वैसे लाइन के बेसिस पे पिच किया जाता है। तो व्हाट इज पिच? मुझे समझाओ। व्हाट इज पिच? पिच ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? पिच तो अलग अलग भी होता है ना। एक साउंड में भी हम लोग पिच यूज करते हैं। एक एंगल होता है, पिच डायमेंशन होता है। कौन सा पिच की बात कर रहे हैं? ये क्या है? ये सब क्या बोल रहे हो? The angle measured within an inclined plane between a horizontal line and एंड जो लाइन दिया गया हो। एग्जैक्टली। तो अगर सब ये जो प्लेन्स है, सब प्लेन्स पे सेम पिच वाला जो लाइन होगा, बोलो बोलो रवि। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बोल। यू रेज्ड अ हैंड, दैट्स व्हाई। ओके। वो गलती कर दी। हाँ, तो बेसिकली ये जो चार प्लेन्स है, इसके ऊपर आई टेक 4 लाइन्स विच हैव द सेम पिच। मतलब प्लेन 1 के ऊपर लाइन 1 दैट हैज सम पर्टिकुलर पिच लाइक 10 डिग्री पिच। प्लेन 2 के ऊपर लाइन 2 दैट हैज 10 डिग्री पिच। 3 के ऊपर लाइन 3 दैट हैज 10 डिग्री पिच एंड 4 के ऊपर लाइन 4 दैट हैज 10 डिग्री पिच। इफ आई कंसिडर पिच क्या होता था, तो एक बार समझा दोगे? पिच मतलब अगर ऐसे इंक्लाइन प्लेन है हम्म और एक लाइन है, हम्म तो ये क्या है? बेसिकली ये स्ट्राइक है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। हाँ। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ये वाला लाइन जो दिया हुआ है, उसके साथ जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड पिच ऑफ दिस लाइन ऑन दिस प्लेन। ओके। तो मान लो कि ऐसे लाइन है, मान लो ये लाइन 4 प्लेन 4 है, तो प्लेन 4 इज ऑलमोस्ट वर्टिकल ना। तो मान लो कि दिस इज प्लेन 4। You just look at this diagram and look at my phone and this pen. तो ये मान लो प्लेन 4 है, ये लाइन 4 है एंड देर इज समथिंग लाइक 10 डिग्री पिच। फिर दिस इज प्लेन 3 एंड अनदर लाइन विथ सेम 10 डिग्री पिच। जी। फिर से अब प्लेन 2, another line with the same 10 degree pitch, Yes. and then plane 1 with another line having the same 10 degree pitch. जी। तो जब ये लाइंस को हम प्लॉट करेंगे, they will become points. Yes, ma'am. Yes. B. Yes. So they will become points. तो जब हम वो पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, we will get something like this. उसका प्रोजेक्शन जब लेंगे, मतलब it's like this. मान लो कि
इधर ये जो पिच है, वी आर जॉइनिंग ऑल दिस पॉइंट्स। इसका प्रोजेक्शन ले रहा है ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन, मतलब ऐसे इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके नीचे ऐसे वी आर गेटिंग द लाइंस, सॉरी द पॉइंट्स। तो उसका जो प्रोजेक्शन लेंगे इक्वेटोरियल प्लेन के ऊपर, इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस। जी समझ में आया? हाँ दी। हाँ जी This is how we get the small circles. So small circles are nothing but projection. अच्छा, just a second, I missed one thing. Projection मतलब जेनिथ से ही projection लेना पड़ता है। ओके मतलब जेनिथ से इसको कनेक्ट करो, नीचे वाला जो लाइंस है सब कनेक्ट कर दो, और फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा इक्वेटोरियल प्लेन को कट करेगा, there you join the points and you get this line, this small circle. Okay, ओके मैम ओके ये समझ में आया? जी जी वो जेनिथ से कैसे कनेक्ट हो रहा है वो समझ में नहीं आया जो वो तो डायरेक्ट लग रहा है कि ऐसे ही टच कर देंगे उसको। नहीं, पिच जो हुआ था, we took the points, they were, मतलब पहले तो मेरे पास बस पॉइंट्स था, लाइंस हैव बीन प्लॉटेड एज पॉइंट्स। छोड़ो लाइंस, ये जो प्लेन के ऊपर लाइंस हैव बीन प्लॉटेड, जी ऊपर से जब देख रहे हो, दे विल बी लुक लाइक पॉइंट्स। जी तो वो पॉइंट्स को हम जेनिथ से कनेक्ट कर रहे हैं। ओके क्योंकि मतलब ये जो प्लेन्स है, ऊपर से जब देख रहे हो, प्लेन्स आर लुकिंग लाइक लाइंस, ऊपर से जब जी देखोगे। सिमिलरली प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं मैम, तो जब लाइंस को ऊपर से देखोगे, दे विल लुक लाइक पॉइंट्स, जी and when you connect those points with the zenith, you will get this whole line. ओके Clear है? जी Okay, just a second. This can be explained in another way. I'll show you. I hope it will be easier visualize करने में। So what we are doing is, मान लो कि ये जो पिच का बात कर रहे थे हम, let us take a solid angle of 10 degree। मतलब ऐसे करके 10 डिग्री एंगल, ऐसे करके 10 डिग्री एंगल ले लिया। दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज द सेंटर। तो 10 डिग्री एंगल ले लिया, सॉलिड एंगल। तो ये जो सॉलिड एंगल है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। सॉलिड एंगल मतलब समझते हो? मतलब अगर देखो एक कोन है, जी पूरा ये कोन है ना, तो ये वाला जो एंगल है इधर, ये एंगल, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल।
तो अगर ये है सेंटर, ये है मेरा सेंटर और ये है मेरा पेरिफेरी ऑफ द हेमिस्फीयर, तो ऐसे एक सर्कुलर थिंग वी विल गेट। जी तो दिस इज हियर दिस सर्कुलर थिंग, समझ में आया? जी तो जब इसको ये जो पॉइंट्स है इसको हम जेनिथ से कनेक्ट करेंगे, तब हमको ये स्मॉल सर्कल मिलेगा। हाँ अच्छा ये समझ में आया? जी सो ऐसे भी तुम कर सकते हो कि स्मॉल सर्कल कैसे फॉर्म होता है। दिस इज बेसिकली द थिंग। ये इजियर है ना? जी ओके, सो दिस इज हाउ स्मॉल सर्कल्स कम इनटू बीइंग। अब हम, अच्छा थोड़ा ज्यादा ही लोड हो रहा है क्या? नो नो आज नॉट एट ऑल नॉट एट ऑल इजी क्या क्या? जी नहीं लोड ज्यादा नहीं हो रहा है रवि क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोला था, मैं बोला था कि अगर आज के लिए हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा और, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा प्लीज। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये रब कर सकते हो? एक मिनट स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, वैसे तो बना लिया हूँ। रुको। हाँ हो गया, एक मिनट। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट। मैम इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा राइट रिकॉर्डिंग? अवेलेबल होगा हाँ हाँ होगा, बट थोड़ा टाइम चाहिए, वही है प्रॉब्लम। तुम लैपटॉप में क्लास करते हो? नहीं मैम लैपटॉप टैब है मेरा तो वहां से व्हाट्सएप पे ग्रुप ज्वाइन नहीं है तो आप तो मुझे थोड़ा रिकॉर्ड ऐड कर कर सकते देना हो अगले दिन से? जी अगले दिन से रिकॉर्ड कर सकते हो? मैम मेरा टैब है टैब में भी हो जाएगा। ओके ठीक है आई यूज्ड टू रिकॉर्ड इन टैब व्हेन आई वाज लाइक स्टडीइंग बीएससी। जी ओके, सो this is my stereonet. I'm not drawing all the small circles and red circles. So we already know कि इधर क्या क्या है। इधर ऐसे red circles है और ऐसे small circles है, right? We already know that. But हर time जब हम स्टीरियो प्लॉट करेंगे, स्टीरियोनेट को हम ऐसे भी स्टीरियो प्लॉट या स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, ये और ये सेम ही है। जब हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन या स्टीरियो प्लॉट करेंगे, what we will do is we won't draw all the small circles and red circles. We will draw only this and the plane or the line that we are taking into consideration. Okay, now I'll share my screen, थोड़ा देख लेना।